بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مخدوم الاولیاء سلطان الاصفیاء حضرت شیخ علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدسی گروہ کے سرخیل ہیں جو امام رسول ہادی سبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کمال محبت اور مطابعت سے ولایت کے عرفہ و اعلیٰ مقام اور بلند مرتبہ پر فائز ہو کر خلافت الہیہ اور حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کبریٰ کے منصب جلیلہ پر متمکن ہوئے۔ چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو محبوب خدا کی محبت میں فنا کر دیا تھا، اس لیے انہیں بھی مقام محبوبیت عطا کیا گیا اور وہ زمین پر خلیفۃ اللہ، مظہر انوار خدا اور نائب محبوب خدا کہلائے۔ ان کی ظاہری زندگی میں بے پناہ فیض رشد و ہدایت جاری ہوا۔ برزخی زندگی میں کاسی میں فیوز و برکات ہونے کی وجہ سے ان کا روحانی فیض عوام و خواص کے لیے یکساں جاری رہا۔ ان کی تعلیمات اور ارشادات طالبان راہ خدا کے لیے شیخ طریقت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر مرتبہ اور استعداد کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور ظرف کے مطابق ان سے مستفید اور مستفیض ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعطائے الہی اور بفیض سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ میں کفرستان ہند میں اسلام کا پرچم لہرایا اور اپنی روحانی قوت اور نظر کیمیا اثر کے ذریعے بے شمار گم گشتگان بادیہ کفر و ضلالت کو صراط مستقیم پر گامزن کیا اور ان کے سینوں کو نور اسلام سے منور فرمایا۔ بعد وصال حضرت شیخ کا مزار پر انوار فیض رسان عالم اور منبع روحانیت و تبانیت ہے۔ بقول حضرت سلطان العارفین نام فقیر تناندہ باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ کشف المحجوب کی صورت میں ان کے ارشادات گرامی بجائے خود مرشد کامل کی حیثیت رکھتے ہیں، غرض کہ ایسی محبوبیت اور مقبولیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت کم اولیاء کرام کو نصیب ہوئی۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر پاک و ہند کے اولین مبلغین اسلام میں سے ہیں۔ ان کا مزار گوہر بار ان کے فیض کی وجہ سے قریباً 950 سال سے مرجع خواص و عوام چلا آ رہا ہے اور ان کی تصنیف کشف المحجوب اطراف و اکناف عالم میں شہرت اور مقبولیت رکھتی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بابرکات پر کوئی قدیم کتاب نہیں ملتی۔ اس کی دو خاص وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ جس زمانے میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں شمع ہدایت روشن کی، اس وقت یہاں مسلمانوں کے نئے نئے قدم جمے تھے اور پورے طور پر سیاسی استحکام حاصل نہیں ہوا تھا۔ ان حالات میں جن مورخین نے تاریخ نویسی کا آغاز کیا، انہوں نے تاریخ کو اپنے آقایان نعمت یعنی فاتحین کے گرد گھمانا شروع کر دیا، اور بعد کے مورخین نے صرف ان بزرگوں کے مختصر حالات لکھے جن کے آستانوں پر ان کے ممدوحین کو شرف حاضری نصیب ہوا تھا۔ دوم یہ جن حضرات نے بادشاہوں سے ہٹ کر صرف ان نفوس قدسیہ جن کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی، ان کے حالات زندگی اور ان کی اسلامی اور روحانی خدمات جلیلہ کی تفصیلات کو قلم بند کیا، ان کی تالیفات کو اس خطے کی ازلی بد نصیبی نے محفوظ نہیں رہنے دیا۔ ظاہر ہے کہ بزرگان دین کے تذکرہ نویسوں میں سے اکثر فن تاریخ کے ماہر نہیں تھے، لہٰذا وہ بزرگوں کے حالات لکھتے وقت
واقعات کے سنین کا صحیح تعین نہ کر سکے، جس کے باعث تاریخ دانوں پر بدزنی کا موقع مل گیا۔ بہرحال حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کام ضرور ہوا، مگر وہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ جہانگیری عہد کے مشہور تذکرہ نگار محمد غوثی بن حسن شتاری حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے ذیل میں بسال 1022 ہجری لکھتے ہیں، تواریخ مشائخ کے سابقہ مصنفین کا خیال ہے کہ کشف المحجوب کے مصنف وہ بزرگ ہیں جن کا مزار مبارک لاہور میں ہے۔ محمد غوثی نے سابقہ مصنفین کا جو حوالہ دیا ہے، اس سے واضح ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے بہت سے ماخذ تلف ہو چکے ہیں۔ ان ماخذات کے اتلاف ہی کا نتیجہ ہے کہ یہاں کے دانشور تاریخ و تحقیق کے نام پر کوئی نہ کوئی نیا افسانہ پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال موجود دو معلوم تذکروں میں سے تذکرۃ الاولیاء از شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، اس میں دو جگہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی درج ہے۔ حضرت خواجہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات فوائد الفواد اور درر نظامی میں بھی ان کا ذکر خیر ہوا ہے۔ ان کے بعد کے ایک ایسے ماخذ سے مغربی دنیا کے مصنف ایتھے نے علمی دنیا کو متعارف کروایا ہے، جو انڈیا آفس لائبریری لندن میں موجود ہے۔ اس کا نام رسالہ ابدالیہ ہے، جو حضرت مولانا محمد یعقوب بن عثمان غزنوی کی تالیف ہے۔ پھر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نفحات الانس میں، حضرت شیخ احمد زنجانی نے تحفۃ الواصلین میں، ابو الفضل نے آئین اکبری میں، عبد الصمد بن افضل محمد نے اخبار الاصفیاء میں، لال بیگ لالی نے ثمرات القدس میں، مولانا محمد غوثی نے گلزار ابرار میں، شہزادہ محمد دارا شکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں، مولانا محمد بقا اور بختاور خان نے ریاض الاولیاء میں ذکر کیا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے یہی قدیم ماخذ ہیں۔ ان کے بعد لالا سبحان رائے بٹالوی نے خلاصۃ التواریخ میں اور میر غلام علی آزاد بلگرامی نے معاصر الکرام میں ضمناً ذکر کیا ہے۔ متاخرین میں سے لالا گنیش داس وڈیرا نے چار باغ پنجاب میں، مفتی غلام سرور نے خزینۃ الاصفیاء میں اور حدیقۃ الاولیاء میں، مولوی نور احمد چشتی نے تحقیقات چشتی میں حالات قلم بند کیے ہیں۔ ان کے بعد کے مؤلفین نے انہی کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مستند حالات زندگی اسی قدر ملتے ہیں جتنے انہوں نے خود کشف المحجوب میں بیان کیے ہیں۔ آپ کے نام و نسب کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ آپ کا اسم گرامی خود آپ کی تحریر کے مطابق علی بن عثمان جلابی یا علی بن عثمان حجویری ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ مفتی غلام سرور نے بحوالہ تاریخ متقدمین شجرہ نسب اس طرح لکھا ہے: حضرت مخدوم علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شاہ شجاع بن ابو الحسن علی بن حسین اصغر بن سید زید شہید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ مشہور ماہر علم انساب پیر غلام دستگیر نامی مرحوم نے یہی شجرہ نسب تاریخ جلیلہ اور بزرگان لاہور میں درج کیا ہے، مگر پانچویں بزرگ کا نام عبداللہ اور قوسین میں شاہ شجاع تحریر کیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مولد اور وطن۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے شہر غزنی کے رہنے والے تھے، جیسا کہ خود فرماتے ہیں: علی بن عثمان بن علی جلابی غزنوی ثم حجویری۔ شہزادہ دارا شکوہ لکھتا ہے: حضرت غزنی کے رہنے والے تھے، جلاب اور حجویر
غزنی کے محلوں میں سے 2 محلے ہیں۔ پہلے جلاب میں قیام پذیر تھے، پھر حجویر میں منتقل ہو گئے۔ ان کے والد ماجد کی قبر غزنی میں ہے، اور ان کی والدہ محترمہ کی مرکت بھی ان کے ماموں تاج الاولیاء کے مزار سے متصل ہے، اور ان کے خاندان کے تمام افراد صاحب زہد و تقوی تھے۔ میں ان کے والدین اور ان کے ماموں کے مزارات کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہوں۔ ڈاکٹر مولوی محمد شفیع تحریر کرتے ہیں، زبیری صاحب کمشنر بہاولپور نے 26 اکتوبر 1959 کو مجھے بتایا کہ یہ قبریں اب بھی موجود ہیں۔ وہ یعنی زبیری صاحب غزنی گئے تھے اور انہوں نے ان قبروں کو موجود پایا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سال ولادت۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مستند سال ولادت کسی قدیم کتاب میں درج نہیں ہے۔ پروفیسر نکلسن کا خیال ہے کہ ان کی پیدائش 10ویں صدی کے آخری اشرے یا 11ویں صدی کے ابتدائی اشرے میں ہوئی، یعنی 381 ہجری تا 401 ہجری۔ ڈاکٹر مولوی محمد شفیع لکھتے ہیں، اندازے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی ولادت 5ویں صدی ہجری کے شروع میں ہوئی۔ ڈاکٹر معین الحق کی رائے یہ ہے، بعض لوگوں نے ان کی پیدائش کا سال 400 ہجری لکھا ہے، لیکن اس کو یقینی نہیں کہا جا سکتا۔ منشی محمد دین فوق رقم تراز ہیں، ان کی پیدائش کا فخر 400 ہجری یا 401 ہجری کو حاصل ہوتا ہے۔ سال ولادت کے باب میں مذکورہ قیاس آرائیوں کی تائید رسالہ ابدالیہ سے بھی ہوتی ہے، یعنی رسالہ مذکور کے مؤلف نے لکھا ہے کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وقتاً فوقتاً سلطان محمود غزنوی کے دربار میں جاتے تھے۔ انہوں نے عالم شباب میں ایک ہندو فلسفی سے مناظرہ بھی کیا تھا۔ عالم شباب میں 20-21 سال عمر فرض کی جا سکتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی 421 ہجری میں فوت ہوا، لہذا رسالہ ابدالیہ کی اس روایت کی بنا پر حضرت کا سال ولادت 400 ہجری کے لگ بھگ قرار دیا جا سکتا ہے۔ بقول لین پول محمود غزنوی 388 ہجری یعنی 998 عیسوی میں سریر رائے سلطنت ہو گیا تھا۔ گویا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود کے دور حکومت میں اس وقت پیدا ہوئے جب کہ وہ بر صغیر پاک و ہند پر متعدد بار حملہ آور ہو چکا تھا، اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس غازی کے پاس اس کی زندگی کے آخری 2 برسوں میں آتے جاتے رہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ العزیز علوم ظاہری و باطنی کے بحر ذخار تھے۔ ان کی یہ عظمت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ انہوں نے متعدد علماء و فضلاء سے اکتساب علوم کیا۔ کشف المحجوب جہاں داتا صاحب کے مختصر حالات سے آگاہ کرتی ہے، وہاں ان کے ایک باقاعدہ استاذ کے نام نامی کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ حضرت نے اپنے ایک استاد حضرت ابو العباس بن محمد شقانی کا ذکر نہایت ادب و احترام سے کیا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوان عمری ہی میں علوم ظاہری کی تکمیل کر چکے تھے۔ انہیں فطرتاً ولی اللہ ہونے کا مقام و مرتبہ حاصل تھا، یعنی وہ بطن مادر ہی سے ولی کامل پیدا ہوئے تھے۔ صاحب رسالہ ابدالیہ کا بیان ہے، حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان محمود غزنوی جو 421 میں فوت ہوئے، ان کی موجودگی میں غزنی کے مقام پر ایک ہندوستانی فلسفی سے مناظرہ کیا اور اسے اپنی روحانی قوت سے ساکت و صامت کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ مناظرہ سلطان محمود کی زندگی کے آخری 2 برسوں میں ہوا ہوگا، اور اس وقت حضرت کی عمر 20 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کشف المحجوب کے مطالعے سے ان کی 9 اور تصانیف کے نام معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی کتاب آج دستیاب نہیں۔
उन किताबों को कुछ लोगों ने अपनी तरफ मंसूब कर लिया। इसका वाकया खुद हजरत ने कश्फुल महजूब में तहरीर किया है। बहरहाल उन 9 तसानीफ के नाम ये हैं। नंबर 1, दीवान। इस दीवान को किसी ने अपनी तरफ मंसूब कर लिया। ये बात खुद कश्फुल महजूब में हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने खुद तहरीर फरमाई, मगर ये नहीं बताया कि ये मजमुआ अशार अरबी में था या फारसी जुबान में, और इसमें उन्होंने अपना तखल्लुस भी जाहिर नहीं फरमाया। नंबर 2, किताब फना व बका। मसला फना व बका में लिखी गई ये किताब। नंबर 3, असरारुल खर्क वल मौनात। जाहिरी और बातिनी मुरक्का के आदाब में इस किताब का नाम फारसी के तमाम एडिशनों में यही लिखा है, मगर ज़ोकोफिस्की एडिशन में असरारुल खल्क वल मलूनात दर्ज है। नंबर 4, अर्रियायतु बेहुकूकिल्लाहि तआला। मसाइल तौहीद पर यह किताब है। इसी नाम की एक तसनीफ हजरत शेख अहमद बिन खजरविया रहमतुल्लाह अलैह की भी है, जो कश्फुल महजूब के माखिजों में शामिल है। और इसी नाम की एक किताब हजरत अबू अब्दुल्ला हारिस बिन असद मुहासबी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ भी है, जो लंदन से छप चुकी है। नंबर 5, किताबुल बयान लिअहलिल अयान। मसालाए जमा व तफरीका के हवाले से किताब है। नंबर 6, नहवुल कुलूब। मसालाए जमा पर मुफस्सिल किताब है। नंबर 7, मिनहाजुद्दीन। तरीकत, तसव्वुफ और मनाकबे असहाब सुफ़ा में है, और हुसैन बिन मंसूर हल्लाज का हाल भी बयान किया है। दीवान की तरह इसे भी किसी ने अपनी तरफ मंसूब कर लिया था। नंबर 8, ईमान। ईमान और असबाते एतिकाद व मशाइख में एक रिसाला लिखा, जिसका नाम मुस्तनद नहीं पाया जाता। नंबर 9, शरा कलाम मंसूर। हजरत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह के कलाम की शरा। हजरत शेख अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद अकमल और दीगर असातिज़ा। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा किराम के सिलसिला में मशरिकी सवाने निगारों ने किसी खास तवज्जो से काम नहीं लिया। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने खुद कश्फुल महजूब में हजरत अबुल अब्बास मोहम्मद शकानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया है, तो बड़े अदब से उनका नाम लिया है और उनकी मेहरबानियों और इनायात को याद फरमाते हुए आपसे इक्तिसाब इल्म का जिक्र फरमाया है। उलूम इस्लामी यानी तफसीर व हदीस और फ़िक़्ह पर जो आपको कामिल दस्तगाह हासिल थी और जिसका इजहार कश्फुल महजूब के बुलंद पाया इल्मी मकालात और मबाहिस से होता है, वो इस अम्र के शाहिद हैं कि आपने अपने वक्त के बाज़ दूसरे साहिबाने इल्म फजल से भी इस्तेफादा किया था, इसलिए कि आप सिर्फ आरिफ कामिल ही नहीं बल्कि एक बुलंद पाया आरिफ व आलिम हैं। कश्फुल महजूब ने आपने जिस तरह तरीक़त व शरीयत के मबाहिस पर बहस फरमाई है और इस्तिदलाल फरमाया है और कुरान व हदीस और अखबार से जिस तरह सनद पेश की है, उससे साफ जाहिर होता है कि आपको उलूम मुतदावला पर दस्तगाह कामिल हासिल थी और आप उलूम शरीयत के भी शनावर नहीं बल्कि गव्वास थे और इल्म तफसीर व हदीस पर आपको उबूर हासिल था और आप इन उलूम पर भी गहरी नज़र रखते थे और ये सब कुछ फैज़ान था आपके मुर्शिद कामिल का। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद अपने मुर्शिद वाला तबार के बारे में फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद कामिल शेख तरीक़त हज़रत अबू अल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन अल खुतली रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जो इल्म तफसीर व रिवायात और हदीस के आलिम थे। पस जहाँ उनके शेख तरीक़त की नज़र कीमिया असर ने आपको तरीक़त में इस बुलंदी पर पहुँचाया, वो अगर उलूम दीनी यानी तफसीर व हदीस में भी आपको ऐसी बसीरत अता फरमा दे जो अकरन व इमसाल से मुमताज़ बना दे, तो क्या ताज्जुब। हज़रत अबू अल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन खुतली रहमतुल्लाह अलैह के उलूए मर्तबत के सिलसिले में हज़रत दाता गंजबख्श
रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, वो सूफियाए मुताखिरीन में जीनत औताद और शेख इबाद हैं। तरीक़त में मेरी इक्तदा यानी बैत उन्हीं से है। तसव्वुफ़ में हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब रखते थे और हज़रत शेख हसरी रहमतुल्लाह अलैह के राजदार मुरीद थे। अपने मुर्शिद गिरामी से जो ताल्लुक़ खातिर हज़रत अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को था, उसका अंदाज़ा इस अम्र से होता है कि हज़रत अबुल फ़ज़ल ख़ुतरी रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ तो उनका सर हज़रत शेख अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक गोद में था। इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि मुर्शिद को भी अपने मुरीद ख़ास से किस दर्जा मोहब्बत थी। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का शजरा तरीक़त इस तरह से है। हज़रत शेख अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद हज़रत शेख अबुल फ़ज़ल ख़ुतरी रहमतुल्लाह अलैह के, वो मुरीद हज़रत शेख हसरी रहमतुल्लाह अलैह के, वो मुरीद शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह के, वो मुरीद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, वो मुरीद हज़रत शेख सरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के, वो मुरीद हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह के, वो मुरीद हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, वो मुरीद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, और वो मुरीद हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने उम्र का बड़ा हिस्सा सहरा नवर्दी और बादिया पैमाई में बसर किया। इराक, शाम, लबनान, आज़रबाईजान, खुरासान, किरमान, खोज़िस्तान, तबरिस्तान, तुर्किस्तान और मावराउ नहर के शहरों और करियों में तलाश हक के लिए आप सरगर्दां रहे, मगर ये वजाहत कहीं नहीं मिलती कि आप अपने मुर्शिद वाला मर्तबत के साथ कितना अरसा रहे और उनकी सोबत में किन किन मकामात की सैर फरमाई। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के हम असर मशाइख अरबाब हकीकत व तरीक़त अपने दिल की लगी बुझाने और अपने बातिन की तशनगी दूर करने के लिए शहरों और करियों में फिरा करते थे। उसका एक अजीम मकसद ये भी होता था कि अरबाब हाल की सोहबतों में पहुंचकर जिंदगी के कुछ दिन बसर करें, और उनकी सोहबत कीमिया असर भी फैज़ से खाली नहीं होती। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस सैर व सियाहत में अपने मुआसिरीन और सूफियाए उज़्ज़ाम की सोहबतों से इस्तिफ़ादा किया। उन मुआसिरीन में हज़रत अबुल कासिम अली बिन अब्दुल्ला गुरगानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम अबुल कासिम कुशैरी साहिब रिसाला कुशैरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत शेख अहमद हम्माद सरखसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मोहम्मद बिन मिसबाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत शेख अबू अहमद अल मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर अकाबिरीन शामिल हैं। इन मुआसिरीन में से आप हज़रत अबुल कासिम अली गुरगानी रहमतुल्लाह अलैह और जनाब अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र बड़े एहतमाम से करते हैं और उनसे इस्तिफ़ादा करने का भी एतराफ़ फरमाते हैं। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का मसलके तरीक़त। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह अपने पीर तरीक़त के मसलके तसव्वुफ़ के सिलसिले में लिखा है कि वो तसव्वुफ़ में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब रखते थे, चुनाचे हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह तसव्वुफ़ व तरीक़त में जुनैदी मसलक रखते थे और उसके मुत्तबे थे। इसी तरह वो शरीयत में सुन्नी हनफीउल मज़हब थे, चुनाचे जहाँ जहाँ वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का नामे नामी लेते हैं, वो वहाँ कमाल एहतराम को मलहूज़ रखते हैं। कश्फुल महजूब में एक जगह इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र इस तरह करते हैं, इमाम इमामा मुक्तदाए सुन्निया शरफ़ फ़ुक़हा आइज़्ज़े उलमा अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की अज़दवाजी ज़िंदगी।
हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की अज़दवाजी जिंदगी के सिलसिला में कश्फुल महजूब या किसी और तज़किरे में कोई मुकम्मल सराहत नहीं मिलती। कश्फुल महजूब से सिर्फ इस कदर जाहिर होता है कि आपने एक शादी की और जब कुछ मुद्दत के बाद उनसे मुफारकत हो गई तो फिर आपने ताजीस्त दूसरी शादी नहीं की। लाहौर में वरूद मसूद और उसके पाकीज़ा असरात। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की उम्र का काफी हिस्सा सैर सियाहत में बसर हुआ। आपका तजर्रुद और तवक्कुल इस सियाहत में आपका मुआविन था। चुनाचे इसी सियाहत के दौरान अपने मुर्शिद के इशारे पर या अपनी तबीयत के इक्तजा से आपने लाहौर का कस्द फरमाया। इस सिलसिला में बहुत सी दिल आवेज हिकायतें बयान की जाती हैं जिनकी तरदीद की बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। इस सिलसिला में बस इतना कहा जा सकता है कि आपने जब लाहौर में वरूद फरमाया तो सुल्तान महमूद गजनवी या उसका बेटा लाहौर का हाकिम था, लेकिन साले वरूद का तयन करना दुश्वार है। आपके वरूद मसूद ने लाहौर के कालिब में एक नई जान डाल दी। आपके क़याम के दौरान हजारों गुमगश्तगाने बादिया जलालत व गुमराही ने आपसे हिदायत पाई और हजारों मुशरिकों के दिलों से कलमा तौहीद पढ़ाकर जंगे कुफ्र शिरक दूर फरमाया। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में वरूद फरमाने के बाद अपना तमाम वक्त तबलीग इस्लाम और तसनीफ़ व तालीफ में सर्फ फरमाया। दरबार शाही से आपका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। तबलीग इस्लाम का जो काम आपने शुरू फरमाया था उसको बाद में आने वाले अकाबिरीन सूफिया ने अपने पाकीज़ा और आला किरदार से इस्लाम की सच्ची और पाकीज़ा तस्वीर पेश करके पाया तकमील को पहुंचाया। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी कारनामे। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह बहरे तरीकत के गवास थे, इसी तरह आप कुरान व हदीस और फिका पर भी कामिल दस्तरस रखते थे और रमूज़ो असरार शरीयत से भी उसी तरह आगाह थे। जैसा कि इससे कबल अर्ज किया जा चुका है कि इस्लामी तसव्वुफ के दौरे तबे ताबईन में नजरी तसव्वुफ ने इल्मी तसव्वुफ की शक्ल इख्तियार कर ली थी। तसव्वुफ ने जब इल्म की दुनिया में कदम रखा तो रमूज़ तरीकत और असरार हकीकत पर भी कलम उठाया गया, लेकिन उस दौर में इस मौजू पर जो कुछ लिखा गया वो अरबी जुबान में था। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मुआसिरीन में से इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ के रमूज़ पर जो रिसाला कुशैरिया मुरतब किया उसकी जुबान भी अरबी थी। फारसी मफ्तूहीन ने जब तसनीफ की दुनिया में कदम रखा तो उन्होंने भी उसी जुबान अरबी को इख्तियार किया जिसकी तकदीस का कुरान और अहदीस की जुबान से अंदाजा हो सकता है। मजहबियात में अरबी के सिवा किसी और जुबान को इस्तेमाल करना तकदीस के मनाफी ख्याल किया जाता था। फारसी नयाद उलमा व फुज़लाए इस्लाम की गरां बहा तसानीफ इस दावे पर शाहिद हैं। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की मादरी जुबान भी फारसी थी, अगरचे आपको अरबी जुबान पर भी कामिल उबूर था, लेकिन कश्फुल महजूब अवाम व खवास के फायदे के लिए आपने फारसी जुबान में तसनीफ फरमाई। कश्फुल महजूब के अलावा आपकी बाकी 9 तसानीफ जिनका आज वजूद बाकी नहीं है, उसके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि उन किताबों को किस जुबान में तसनीफ किया गया। सिर्फ कश्फुल महजूब की बदौलत ये नाम बाकी रह गए हैं। कश्फुल महजूब जमाने की दस्तबुर्द से महफूज रही और उसके मुताद्दिद कलमी नुस्खे कुतुबखानों में आज भी मौजूद हैं और बर्रे सगीर पाको हिंद में आने के बाद इसके हजारों नुस्खे दिलदादगान शरीयत व तरीकत के लिए नजर फरोज हैं। कश्फुल महजूब कहाँ लिखी गई, लाहौर में या हुजवेर में, और कब लिखी गई यानी साले तसनीफ क्या है, इसकी यकीनी निशानदही मुहाल है। अलबत्ता यह बात यकीनी है कि यह पाकीज़ा किताब रहमत खुदाबंदी की आगोश में लिखी गई।
कश्फुल महजूब की एक वजाहत की बिना पर यह बात भी यकीनी है कि इसकी तकमील शहर लाहौर में हुई। यह तयन करना भी दुश्वार है कि आपके रफ़ीक और मुआसिर हज़रत अबू सईद हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कब और कहाँ आपसे ये सवालात किए थे, जिनके जवाबात बसूरत कश्फुल महजूब आपने अता फरमाए। शेख मोहम्मद अकरम मरहूम बड़े वसूख के साथ तारीख़ मिल्ली में अली हुजवेरी लाहौरी के तहत उन्वान में लिखते हैं, फारसी नसर की सबसे पहली मजहबी किताब जो बर्रे सगीर पाक व हिंद में पाया तकमील को पहुंची कश्फुल महजूब है, और हजरत दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे लाहौर ही में मुकम्मल किया। बहरहाल कश्फुल महजूब अपने मौजू और मुबाहिस के एतबार से जिस कदर बुलंद पाया किताब है, वो तारीफ व तौसीफ से मुस्तगनी है। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद गिरामी इस सिलसिला में मुलाहिजा फरमाइए। आप फरमाते हैं, अगर किसी का पीर ना हो तो ऐसा शख्स जब इस किताब का मुतालिया करेगा तो उसको पीर कामिल मिल जाएगा। और यह हकीकत भी है कि कश्फुल महजूब आपका एक ऐसा शाहकार है जिसकी बदौलत बर्रे सगीर पाक व हिंद में सही इस्लामी तसव्वुफ ने फ़रोग पाया, और इस वस्फ़ ख़ास की बदौलत आज भी कश्फुल महजूब की कदर व मंजिलत इतनी है जितनी आज से 900 बरस पहले थी। कश्फुल महजूब के सिलसिला में इस्लामी सकाफत के मशहूर मुअर्रिख शेख मोहम्मद अकरम मरहूम लिखते हैं, ये किताब आपने अपने रफ़ीक हज़रत अबू सईद हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश पर, जो आपके साथ गज़नी छोड़कर लाहौर आए थे, लिखी, और इसमें तसव्वुफ़ के तरीके की तहकीक, अहले तसव्वुफ़ के मकामात की कैफियत, उनके अक़वाल और सूफिया के फ़िरक़ों का बयान, मुआसिर सूफिया के रमूज़ व इशारात और मुताल्लिका मुबाहिस बयान किए हैं। अहले तरीक़त में इस किताब को बड़ा मर्तबा हासिल है। प्रोफेसर खलीक अहमद निज़ामी इन अल्फाज में तबसरा करते हैं, शेख हुजवेर रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब ने एक तरफ तो तसव्वुफ से मुताल्लिक अवाम की गलत फहमियों को दूर किया और दूसरी तरफ उसकी तरक्की की राहें खोल दी। कश्फुल महजूब की कबूलियत का अंदाजा इससे किया जा सकता है कि सूफियाए किराम के मशहूर तज़किरा निगारों मसलन ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत ख्वाजा मोहम्मद पारसा रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने तज़किरों और तसानीफ में कश्फुल महजूब से इस्तिफादा किया है और मशाइख तसव्वुफ के हालात इससे अखज़ किए हैं। आपके मकूलों और आपकी तहकीक को बतौर सनद पेश किया है। कश्फुल महजूब में जो रमूज़ तरीक़त और जिन हक़ाइक़ मारिफत को मुनकशिफ किया गया है, उनकी बुनियाद हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुकाशिफात पर नहीं रखी, बल्कि उनका माखज़ कुरान और सुन्नत को करार दिया है, या दुनियाए इरफान की मुस्तनद किताबें हैं जिनका जिक्र कश्फुल महजूब में खुद दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ़ लतीफ़ में किया है। और यही इसकी कबूलियत का राज है कि आपके बाद के बुजुर्गान तरीक़त और अरबाब तसव्वुफ़ के लिए वो हमेशा माखज़ का काम देती रही है। साहिब कश्फुल महजूब जिस मसला या रमज़ तरीक़त पर कलम उठाते हैं, वो अव्वलन कुरान हकीम और इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी सनद लाते हैं, फिर उसका इस्तिदलाल आसार व अखबार से करते हैं। अगर वो इस इस्तिदलाल में कामयाब नहीं होते तो वो अकाबिरीन अरबाब तसव्वुफ़ के यहाँ उसकी सनद तलाश करते हैं। आप कश्फुल महजूब का तर्जमा मुलाहिज़ा फरमाएं, आपको खुद मुसन्नफ़ की जानिब से उन मुताबे और माखज़ की निशानदही मिलेगी। कश्फुल महजूब और उसके उर्दू तराजिम। कश्फुल महजूब की बुलंद पायगी का अंदाज़ा इस अम्र से बखूबी लगाया जा सकता है कि सूफियाए उज़्ज़ाम ने इसको अपनी तसानीफ में माखज़ करार दिया। 13वीं सदी के वस्त तक फारसी ज़ुबान अवाम की ज़ुबान थी।
तहरीर की जुबान भी फारसी ही थी। इसलिए उस वक्त तक कश्फुल महजूब के उर्दू तर्जमे की जरूरत ही महसूस नहीं की गई। 13वीं सदी हिजरी के अवाखिर और 14वीं सदी हिजरी के अवाइल में जब फारसी जुबान का इन्हितात बहद कमाल पहुंच गया और उर्दू अवाम की जुबान करार पाई, तो उस वक्त से फारसी जुबान की बहुत सी बुलंद पाया कुतुब के उर्दू में तराजिम होने लगे। चुनांचे जरूरत के तहत कश्फुल महजूब जैसी बुलंद पाया और गिरामाया किताब के मुतअद्दिद उर्दू तराजिम हुए, जो अपने अपने वक्त पर शाया होकर उस अहद और उस वक्त की जरूरत को पूरा करते रहे। इस वक्त तक 20 से ज्यादा उर्दू तराजिम इस अजीम किताब के शाया हो चुके हैं। अव्वलीन तराजिम का अंदाज बिल्कुल आमियाना है और उस वक्त की जुबान अपने अहद की तर्जुमान है। फिर कुछ कुछ तबवीब और तजबीज का एहतमाम होने लगा, लेकिन मुसन्निफ के सवाने निगारों ने इस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। इस सिलसिला में अजीम मुस्तशरिक प्रोफेसर निकलसन, जो मुसन्निफ हैं तारीख अदबियात अरब के, उनको दाद न देना नाइंसाफी होगी कि जब उन्होंने 1911 में कश्फुल महजूब का अंग्रेजी तर्जमा शाया किया तो वो हमारे उर्दू तराजिम से बहुत बुलंद, बहुत वकी और जामे था। उन्होंने सवाने निगारी में तहकीक का हक अदा किया और हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात के हर पहलू पर मुहक्किकाना बहस की। कश्फुल महजूब के मुताबिक और माखिज का पता चलाया, उनके असातिज़ा किराम, उनके मुआसिरीन और उनसे मुताल्लिक तारीखों की जुस्तजू और सेहत की तहकीक की। मुख्तसरन ये कि कश्फुल महजूब के मौजू और मुबाहिस पर सैर हासिल तबसरे करके कश्फुल महजूब के सही मकाम से दुनियाए अदब को मुतारिफ कराया। प्रोफेसर निकलसन की तहकीकात ने कश्फुल महजूब के उर्दू मुतरजमीन को बहुत से नए रास्तों से आशना किया और उन्होंने इस अजीम मुस्तशरिक की तहकीकात से पूरा पूरा फायदा उठाया। प्रोफेसर निकलसन के बाद एक रूसी अदीब प्रोफेसर ज़ोकोफस्की ने बड़ी काविश और दिक्कत नज़र से कश्फुल महजूब के एक कदीम नुस्खा की तस्हीह की और उसको अपने एक मुहक्किकाना मुकदमा बजुबान रूसी के साथ लेनिनग्राड रूस से शाया किया। कुछ मुद्दत के बाद एक ईरानी अदीब ने उसी रूसी मुकदमा को जदीद फारसी जुबान में मुंतकिल किया और अपना तर्जमा शुदा मुकदमा इस सही मतन के साथ शाया करके उस रूसी अदीब की काविशों से ईरानियों और दूसरे दिलदादगाने कश्फुल महजूब को रूशनास कराया। प्रोफेसर निकलसन के तर्जमे और रूसी अदीब के मुकदमा और तस्हीह ने कश्फुल महजूब के उर्दू तराजिम में एक नई जान डाल दी और हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात के बहुत से पहलू पहली मर्तबा अवाम के सामने आए। इस मुख्तसर दिबाचा या मुकदमा में भी इन मालूमात से इस्तेफादा किया गया है। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का विसाल और आपका मज़ार। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत पर जिस तरह तज़किरा निगारों का इत्तेफाक नहीं, इसी तरह आपकी तारीख़ वफ़ात पर भी वो सब मुत्तफ़िक नहीं। रूसी मुकदमा निगार प्रोफेसर ज़ोकोफस्की और प्रोफेसर निकलसन भी तारीख़ विलादत की तरह तारीख़ वफ़ात के सिलसिला में किसी एक साल का तयन नहीं कर सके। प्रोफेसर निकलसन 445 हिजरी और 465 हिजरी का कोई दरमियानी साल आपका साल वफ़ात बताते हैं। शहजादा दारा शिको भी सफीनतुल औलिया में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। बाज़ तज़किरा निगारों ने 465 हिजरी को सही साल तस्लीम करके लफ्ज़ सरदार से आपकी तारीख़ विसाल निकाली है। शेख मोहम्मद अकरम मरहूम भी आब कौसर में कोई एक साल मुतय्यन नहीं कर सके और कहते हैं कि आपकी वफ़ात 465 हिजरी बमुताबिक 1072 ईस्वी के करीब वाक़ हुई। डॉक्टर नूरुद्दीन अपने मुहक्किकाना मकाला तसव्वुफ़ और इकबाल में आपका साल विसाल वसूक के साथ 465 हिजरी ही करार देते हैं और इसी पर अक्सर तज़किरा निगारों का इत्तेफाक है। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुरअनवार।
हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुरअनवार लाहौर में है। इसी निस्बत से लाहौर को दाता की नगरी भी कहते हैं। लाहौर की सरजमीन इस पर जितना भी फख्र करे वो कम है कि एक ऐसी बरगुजीदा और बुलंद पाया हस्ती यहां आराम फरमा है जिसकी आमद ने कुफरिस्तान हिंद के इस खित्ता में शम्मे ईमान फरोजा की। यही वो कुदसी बारगाह है जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इक्तिसाब फैज के लिए मुकीम रहे। यहां की खाके पाक अकाबिरीन सूफिया के लिए सुरमा बसीरत और ताज इज्जत है। यही वो मकाम है जो आज तक किबला अहले सफा बना हुआ है और जहां अनवार इलाही हर वक्त बरसते रहते हैं। यहां अवाम भी हाजिर होते हैं, खवास भी, सूफी भी और आलिम भी। हर एक यहां यकसा अकीदत के साथ हाजिरी देता है। यहां की फजा में हर वक्त और हर लम्हा जिक्र खुदा और जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी व सारी रहता है और दाता के फैज से झोलियां भरने वालों का हर वक्त हुजूम रहता है। बकौल शायर मशरिक मुसव्विर पाकिस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, खाके पंजाब अज दमेऊ जिंदा गश्त, खाके पंजाब अज दमेऊ जिंदा गश्त, सुबह माँ अज मेहरे ताबिंदा गश्त, सुबह माँ अज मेहरे ताबिंदा गश्त।